Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So today we are discussing physics, paper 4, alternative to practical specimen paper for examination from 2023-5054. As of now, you must be seeing this video on Google Drive. Unfortunately, I cannot access my YouTube due to the current situation in the country. This is why you're seeing this video on Google Drive, and this will be uploaded on YouTube whenever I can access my YouTube channel. So let's start off with the specimen paper. The changes which occurred this year was that now the total mark for the paper is 40, whereas as of as of last year it used to be 60 marks. The time remains same, but we have now 40 marks of the paper. Let's start off with our question paper. Question number 1. A student investigates the effect of varying the amount of light reaching a light dependent resistor LDR. She sets up the apparatus as shown in figure 1.1. So एक दफ़ा फिगर देखते हैं क्या हो रहा है. हमने एक लाइट सोर्स है, इसके अंदर ये बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, एलडीआर रखा हुआ है. एलडीआर को हम लोग ने स्टिक किया हुआ है विद एडहेसिव पुटी एंड इधर हम लोग के पास एक करंट है, इधर हमारे के पास एक सर्किट है जिसके अंदर ये पावर सप्लाई है, ये रेजिस्टर है, वोल्ट मीटर एंड ये स्विच है. अभी करंटली स्विच ओपन हुआ हुआ है. क्वेश्चन कहता है फिगर 1.2 shows a reading on the voltmeter when the light source is turned on and the switch is closed. So record the reading on the voltmeter on the answer line and in first row of table 1.1 on page 4. So we can see that this is nearly around 3.2 volts. So this will be 3.2 volts. Next question says a student uses a syringe to add 2 centimeter cube of a colored liquid to the water in the beaker and stirs the mixture. Explain why the student must stir the two liquids together. अब देखिए हो क्या रहा है. टू वाटर के अंदर इन्होंने कोई कलर्ड लिक्विड डाला ताकि हम लोग वाटर से सी थ्रू कर सकें. ठीक है, हमने वाटर के अंदर कलर डाला थोड़ा सा कि कलर्ड हो जाए मिक्सचर, और उसने कहा है कि अब मुझे बताएं आप कि हमने लिक्विड को स्टिर करना क्यों ज़रूरी है. देखिए इट्स अ वेरी, और फिजिक्स का जनरली पेपर एटीपी का, साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करते रहूँगा. सो फिजिक्स का जनरली जो एटीपी पेपर होता है, इट इज़ द ईजिएस्ट अमंग अदर साइंस एटीपी पेपर सच एज केमिस्ट्री. सो अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि देखिए ये कहता है एक बीकर है, इसके अंदर ऑलरेडी एक लिक्विड है विच इज़ वाटर, और हमने इसके अंदर एक और लिक्विड डाला और ये कलर्ड है. मुझे बताएं हमने स्टिर क्यों करना है. सो इसका रीज़न क्या है, दैट we have uniform balance of colors throughout the liquid. Simple as that. So we have uniform balance of colors. अब इसको हम लोग पैराफ्रेज इस तरह भी कर सकते हैं, that color is evenly distributed. So we have uniform balance of colors, or color is evenly distributed throughout the liquid. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगेन दिस इज 1 mark, so this is more than enough. लेकिन हम इसको ज़ाहिर सी बात है, when we are discussing the paper we have to look at every possible answer जो हो सकता है. इसका एक और आंसर भी हम ये कर सकते हैं. देखिए ये क्या लिखा हुआ है, that the reading on the voltmeter when the light source is turned on and the switch is closed. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे we must stir the two liquids together so that we get repeated values on the reading of voltmeter. हम लोग को repeated values के लिए we must stir the two liquids together. So we can also say that reading on voltmeter is repeated when the two liquids are stirred together, and we have to stir it together ताकि हम लोगों को repeatable value voltmeter पे मिल सके. ठीक है, simple as that. अब उसने हमें कहा कि ये जो आंसर है वोल्टमीटर का रीडिंग का, go and place it in the table as well. तो हम लोग इधर लगा देंगे 3.2 volts. Now the next question he says that on figure 1.3 plot a graph of the voltmeter reading against the volume of colored liquid. Draw the best fit curve. तो ये मैंने कर्व बनाई हुई है. Yet again I'm using a graphic tablet, so मेरी शेकी है, आप लोगों की एक कर्व होनी चाहिए स्मूथ. अब एक दफ़ा देख लेते मैंने क्या किया. इट्स वेरी सिंपल. हमने क्या किया कि हमने ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ऊपर जो हमारे पास टेबल है, उसके अंदर हम लोगों ने टेबल्स आइडेंटिफाई करने हैं और पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं. ग्राफ में हमने इस तरह प्लॉट कर दिए सारे पॉइंट्स को. फिर हमने कर्व बनानी है, और कर्व बनानी है ऑफ द बेस्ट फिट. हमने कर्व बनानी है ऑफ द बेस्ट फिट ताकि हम, और इसके अंदर हम लोगों को जितने हमारे पॉइंट्स कवर होते हैं, गुड इनफ जितने होते हैं, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व. एंड इसके लिए if you guys want, I'll make a separate video on it.
वैसे इट्स वेरी सिंपल, चाहे वो ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व, और स्पेशली जब बेस्ट फिट कर्व का कहा जाता है, सो वी हैव मोर लीनियंसी देन द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन ये होती है कि मतलब इस तरह है तो हम लोग ने एक बेस्ट फिट लाइन बनानी है। बेस्ट फिट लाइन में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, वेयर बेस्ट फिट कर्व में थोड़ी सी लीनियंसी काफ़ी लीनियंसी होती है। सो हमने ये बनाना है सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल नहीं, हमने सिर्फ टेबल से प्लॉट करनी है एंड अपनी स्मूथ बेस्ट फिट कर्व बनानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, शो योर वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ वैल्यूज दैट यू यूज। अब इसके अंदर हम लोग ने क्या करना है कि हम लोग ने एक टेंजेंट बनाएंगे, उसके बाद उसने कहा कि x इज इक्वल टू 5 पर टेंजेंट बनाना है, तो x इज इक्वल टू 5 इज नियरली दिस। हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, वी पिक्ड 2 पॉइंट्स। इट इज प्रेफर्ड, पहली बात कि आप अपने टेंजेंट को एक्सटेंड करें, आप अपने टेंजेंट को एक्सटेंड क्या करें हमेशा, एंड पिक टू पॉइंट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक पॉइंट ये चूज कर लें, सॉरी एक पॉइंट ये चूज कर लें, एक पॉइंट ये चूज कर लें, बट अवे फ्रॉम ईच अदर करें। ठीक है, इस केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने लिए 2, ये देखें इधर जो कट कर रहे हैं, दिस इज 2 एंड 1.9, एंड अगला कौन सा है 1.4 एंड 10। सो आई डिड दिस, एंड दूसरा कौन सा, यस मैंने एक 10 पे किया, ये मैंने एक 10 पे किया, एक 10 पे ये वाला पॉइंट मैंने किया है और एक ये वाला पॉइंट किया। दिस इज 2 पे 1.9 एंड दिस इज 10 पे 1.4। हमने ये किया, हमने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लगाया। यू कैन ऑल्सो यूज राइज ओवर रन, आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगे, राइज ओवर रन भी यूज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपने इसको किया और ग्रेडियंट आ गया 7.5। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ लीनियंसी, आपके पास काफ़ी रेंज होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन चीज़ों के अंदर आपके पास काफ़ी रेंज होती है ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब वन प्रिकॉशन टेकन टू एंश्योर दैट द रीडिंग फ्रॉम अ वोल्ट मीटर इज एक्यूरेट। सो फिजिक्स एटीपी के अंदर यूजली अ लॉट ऑफ इज कॉमन सेंस। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, इसके लिए थोड़ी सी आपके पास अपैरेटस नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास जीरो एरर का चांस होता है, हमारे पास जीरो एरर का चांस होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चेक फॉर जीरो एरर्स। एंड दूसरी चीज़ है, ये भी बहुत कॉमन सेंस की, देखिए आप बात सुने, अब ये हमारे पास है वोल्ट मीटर, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास प्रिकॉशन क्या है कि हम लोग ना इसकी वोल्ट मीटर के ऊपर ना टैप करेंगे, वोल्ट मीटर के ऊपर टैप करेंगे, ताकि जो स्टिक है ना, अगर तो ये स्टक है, अगर तो ये स्टक है तो स्टक ना रहे, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टकिंग, हम लोग क्या करेंगे, हम इसको टैप करेंगे वोल्ट मीटर को, हम वोल्ट मीटर को टैप करेंगे ताकि वो स्टिक स्टक ना रहे। सो इसका अगला प्रिकॉशन क्या हो सकता है, चेक फॉर जीरो एरर्स और टैप द voltmeter to prevent needle stucking, to prevent the needle to prevent needle stucking। ठीक हो गया, अगली बात है, another student performed the same experiments, he calculates a gradient which is slightly different to the value you obtained, suggest two variables that are difficult to control that may result in different gradients। अब आप देखें क्वेश्चन क्या है, अक्सर अगेन एटीपीस के अंदर पार्ट्स बहुत सारे होते हैं तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं अपना भूलना, आप लोगों ने कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी, यू शुड बी अवेयर एवरी टाइम कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन हमारे पास ये apparatus है, लाइट सोर्स है, LDR है, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब दो वेरिएबल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन से हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, सबसे पहले हैं दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट the intensity of the light, ठीक है, मतलब कि उसकी लाइट सोर्स की कितनी इंटेंसिटी, कितनी ब्राइटनेस पहुंच रही है, हम उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगली चीज़ है हमारे पास, अगली चीज़ हमारे पास क्या है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द कलर्ड लिक्विड, हमें कंसिस्टेंसी ऑफ द कलर्ड लिक्विड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल द कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्ड लिक्विड। उसके बाद हमने टू लिखनी है बट आई एम राइटिंग एडिशनल पॉइंट्स एज वेल। उसके बाद वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड एलडीआर, डिस्टेंस between light source and LDR
and LDR. And the last one is very common and very मतलब basic सी बात है इसमें तो ये बहुत common sense वाला point है कि we can say that how much water colored the colored liquid is mixed with ठीक है जी. So these are some of the points which you guys can write. Of course आप इसमें paraphrase कर सकते हैं अपनी मर्जी से, but these are some basic points जो मैं बता रहा हूँ कि variables कौन सी हैं. Intensity of the light reaching the light source. देखें लाइट सोर्स कितनी इंटेंसिटी कितनी ब्राइटनेस से पहुंच रही है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है. कलर्ड लिक्विड की जो अंदर जो कंसिस्टेंसी है, इनकी कंसिस्टेंसी जो है लिक्विड की, उसको मेंटेन करना. फिर लाइट सोर्स और एलडीआर के अंदर जो डिस्टेंस है, उसको डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड एलडीआर एंड हाउ मच वाटर द कलर्ड लिक्विड इज मिक्स्ड विद. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, हम कहते हैं कि a student investigates the effect of two lenses on the size of a shadow. अब ये क्या हो रहा है, ये पावर सप्लाई है, ये वेट है, इधर हमारे पास ये क्लैम्प स्टैंड है, इधर हमारे पास मॉडलिंग क्ले है, लेंस है, लैंप है, ये ग्राफ पेपर है. अच्छा, ये जिधर ग्राफ पेपर है इसके नीचे शेडो हमारा बनेगा. ठीक है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है, ये कोई डिस्टेंस होंगे. अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट यूजेस अ स्मॉल लैंप कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट पावर सप्लाई. ये लैंप है connected to a 3 volts power supply. ठीक है, he attaches the clamp holding the lamp to the highest position on the stand. In this position the distance z between the lamp and the bench is 56.5. मतलब कि जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 56.5. ठीक है, अब उसने कहा he he places one of the glass lenses in the jaws of a clamp at a distance x is equal to 20 centimeter below the lamp. मतलब ये कि हमें ये बात पता चलेगी, ये जो x है, ये जो डिस्टेंस है जितना x वाला, ये हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर. ये हमें बात पता चलेगी. उसने कहा डिस्क्राइब टू प्रिकॉशंस x is equal to 20. बेसिकली हमें पता चलेगा x is equal to 20. क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब टू प्रिकॉशन दैट ही टेक्स टू इंश्योर द apparatus is set up safely. अब सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, दैट इधर आप लोगों ने देखा होगा कि इधर हम लोगों ने वेट लगाया हुआ है, इधर हम लोगों ने वेट प्लेस किया हुआ है. इसकी क्या रीजनिंग है कि बेसिकली we use weight to prevent stand ये किधर चला गया, to prevent stand from toppling, ताकि वो टॉपल ओवर ना कर जाए. we apply weight to prevent stand from toppling. ठीक होगा, ये हमारे पास एक प्रिकॉशन आ गई. अगली बात क्या है, that we have to gently attach. अब जरा मेरी बात गौर से सुने. पहला पार्ट तो ये हो गया ना, दैट हमने वेट लगा दी, हम लोग ऑब्जर्व कर लिया, हमें समझ आ रहा है कि हम लोग ने वेट अप्लाई किया ताकि हमारा apparatus टॉपल ओवर ना कर जाए. ठीक है, अगला क्या है, दैट वी जेंटली, इधर लिखा हुआ है ना, दैट ही अटैचेस द क्लैंप होल्डिंग द लैंप. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे gently attach the clamp to the lamp to prevent breaking of glass, of bulb glass. तो हमारे पास जो लैंप है ना, देखें लैंप के अंदर जो बल्ब है हमारे पास, ये बल्ब जो लगा हुआ है ग्लास का है, तो हम लोग को जेंटली उसको अटैच करना है, जेंटली क्लैंप करना है ताकि हमारा जो बल्ब का ग्लास है वो टूट ना जाए. ठीक है, ये हमारे पास आ गए दो प्रिकॉशंस. लेकिन हम लोग और को डिस्कवर करते हैं, सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट we have to supply voltage that is not exceeding the rating of lamp. मतलब कि उसने कहा कि the student uses a small lamp connected to a 3 volts power supply. ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी वोल्टेज सप्लाई करनी है जितनी लैंप की रेटिंग है, जितनी लैंप बियर कर सकता है, जितनी लैंप की कैपेबिलिटी है, जितनी लैंप की कैपेसिटी है. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट सप्लाई वोल्टेज not exceeding
लैंप्स रेटिंग, सही है। और बाकी हमारे वैसे 3 ही है जो हम लोग देख सकते हैं प्रिकॉशंस, जो हमें समझ आ रही है, ठीक है। एंड इफ यू थिंक देयर इज if you think there are more precautions, please let me know in the comment section below. It's okay, I would love your feedback as well. Anyways, let's move forward. अगला क्वेश्चन कहता है that the student switches on the lamp, the lamp light and the modeling clay produces a shadow on the graph paper. देखें ये जो एरिया था यहाँ पे shadow produce हो गया, ठीक है। अब उसने कहा that he holds a second lens under the lamp. When this lens is touching the lamp, the diameter d of the shadow of the modeling clay on the graph is 2 millimeters. The student moves the second lens down the clamped lens. Down the clamped lens, he observes the changes. In D, he records his observation as shown in figure 2.2. D decreases as the second lens moves away from the lamp. The shadow of D disappears from the view at x is equal to 9 cm. At x is equal to 10 cm, it appears again and increases in size. When the second lens is touching the clamped lens, D is about 6 times bigger than it was at 0 cm. Use a student's observation to sketch a graph on figure 2.3 showing how D changes with increasing x. अच्छा जी, अब इधर जो मैंने हाईलाइट किए जरा की पॉइंट्स जरा गौर से सुने। उसने कहा जो डायमीटर डी ऑफ द शेडो ऑफ द मॉडलिंग क्ले ऑन द ग्राफ पेपर है वो है 2 मिलीमीटर्स का। उसने कहा कि x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर के अंदर हमारा शेडो डिसअपियर हो जाता है एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के अंदर वो वापस अपीयर हो जाता है। एंड व्हेन द सेकंड लेंस इज टचिंग द क्लैंप्ड लेंस, d इज अबाउट 6 टाइम बिगर देन एट 0 सेंटीमीटर, मतलब कि d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनटू 6, तो कितना 12 बन जाता है, राइट। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। इधर हमें पता है y x एक्सिस पे डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस फ्रॉम लैंप एंड क्या कहते हैं x एक्सिस पे हमारे पास है d। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी यहाँ पे है, लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे हमारे पास है 12। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सॉरी हमारे पास ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे क्या, इधर हम लोग कहेंगे कि समवेयर अराउंड हियर, हम कहेंगे समवेयर अराउंड हियर इज 9 सेंटीमीटर का मार्क। अब हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा टिल 9 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद एट 9 सेंटीमीटर ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। गिव मी अ मिनट, होगा क्या रहा है, सही है। एंड उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा till it reaches 10 centimeter and from 10 centimeter onwards it will go, okay। अब हो क्या रहा है इधर जरा गौर से सुने। हमने कहा, उसने कहा 2 मिलीमीटर्स पे शुरू हुआ एंड उसने कहा d disappears from view at x is equal to 9 centimeter, तो भाई 9 सेंटीमीटर तक ये जा रहा है, फिर ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, मतलब कि 0 पे पहुंच गया, ये 0 पे हम लोग ने टच कर दिया, फिर उसने कहा 10 पे ये वापस रीअपेयर हुआ एंड जो हमारे पास d था विच वाज ओरिजिनली 2 वो 6 टाइम्स बड़ा हो गया, मतलब 12। तो मतलब ये कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक ये 12 हिट नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे 12 पे ऑलमोस्ट हिट करेगा। इस तरह का हमारा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगला पार्ट कहता है द स्टूडेंट रिमूव्स द मॉडलिंग क्ले फ्रॉम द क्लैंप्ड लेंस। He keeps the lamp at the top of the stand. He can see an image of the lamp on the graph paper. On the bench, he adjusts the position of the clamped lens until the image is as small and bright as possible. He finds that he cannot position the clamped lens so that image seen on the graph is in focus. The image is as small as and bright as possible when x is equal to 27.6 centimeter. कैलकुलेट y। अब देखिए मैं कहता हूँ, इसने मुझे कहा x कितना है 27.6 सेंटीमीटर है, तो मैं y किस तरह ढूंढूंगा अगर मैं z में से x को माइनस कर दूंगा, राइट। सो मैं कहूंगा दैट y इज इक्वल्स टू z माइनस x। तो z कितना है हमारे पास 56.5 है, माइनस हमें x कितनी वैल्यू दी है 27.6, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 28.9।
अभी 56.5 कहाँ से है, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है 56.5, ठीक है जी। अगला पार्ट कहता है a student suggests that the focal length f of the lens is this much, इक्वेशन दी हुई है, calculate the value of f using this equation where x 27 cm and y is the value calculated in CI, show your working। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपसे पहला पार्ट आपको पता है, शायद आपको फील हो रहा है कि यार ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको एरर कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। मतलब ये कि जो उसने कहा एंड y इज द वैल्यू, तो एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में क्या लिखेगा, कैंडिडेट्स y, जो कैंडिडेट की वैल्यू आई है y की, अगर उसने वो यूज करके ये क्वेश्चन सही पुट कर दी अपनी y की वैल्यू के साथ, तो उसको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एरर कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है। सो आपने कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने प्लीज, जबकि ऊपर वाला पार्ट इज वेरी सिंपल, बट इफ समवन कैन नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस फ्रेजिंग और उसको समझ ही नहीं आई, सो इट इज कम्प्लीटली फाइन। आपने अगला पार्ट करके आना, अगले पार्ट बिल्कुल सिंपल, फ्री 2 मार्क्स है। उसने इक्वेशन दी हुई, उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करनी है बस। क्या करना है हमने कहा f इज इक्वल्स टू x कितना है 27.6 मल्टीप्लाइड बाय 28.9 प्लस 27.6 प्लस 28.9, एक दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दफा वो आपस में ऐड हो रहे हैं और बीच में इनका डिवाइड का साइन आ गया। ये हम लोगों ने किया, कैलकुलेटर में पुट किया, आंसर हमारे पास आ गया 14.1175, 14.1175। इट्स बेटर आप लोग राउंड ऑफ कर लिए कि करें, अब 14.1 लिख दें, 14.2 लिख दें, जो आपका दिल चाहे, बस क्लोजेस्ट वैल्यू। अगला कहता है स्टेट वाई द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus shown in figure 2.1 cannot be used to accurately determine the focal length f। अच्छा जी, अब उसने कहा, अब मेरी बात सुने, इसके अंदर क्या है, हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए ऊपर वाली जो पार्ट जिसने पढ़ लिया, समझ आ गई, उसके लिए फ्री मार्क्स है। उसने कहा है he finds that he cannot position the clamped lens so that image in the graph is in focus। He adjusts the position of the clamped lens until the image is small and bright as possible। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट इसने की है और ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। अब देखें हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली इस बात से हमें क्या समझ आई है, इस बात से हमें ये पता चला है कि इस बात से हमें ये पता चला है कि डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड लेंस करीब है। देखो डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड लेंस, ये जो डिस्टेंस है लैंप और लेंस का, ये आपस में करीब है, तभी हमारे पास एक्यूरेटली हम लोग फोकल लेंथ को डिटरमिन नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्टेट व्हाई द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्यूरेटली डिटरमिन द फोकल लेंथ। हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड लेंस आर टू क्लोज। अगला पार्ट कहता है what arrangement of the apparatus can be changed in order to accurately determine the focal length of the clamped lens। हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। हम क्या कहेंगे, that lamp and paper need to be further apart to get a sharper image। So we will say lamp and paper need to be further apart, या lamp and lens कुछ भी लिख दें आप, lamp and paper need to be further apart to get a sharper image। अब ये किस तरह कर सकते हैं ये भी आप बता दें, कि उसने कहा है कि one arrangement in the apparatus to get a sharp image। हम लोग क्या कर सकते हैं सोचें, हम लोग कर सकते हैं that we can use a longer rod to increase the distance between lamp and paper। so हम क्या कहेंगे, we can use a longer rod या clamp stand to increase the distance। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो हमारे पास स्टैंड लगा हुआ है, ये जो क्लैंप के अंदर स्टैंड है, इसको हम लोग क्या करें, हम इस रॉड को या स्टैंड का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं। जब इसका हाइट इंक्रीज करेंगे तो लैंप और लेंस या लैंप या ग्राफ पेपर की डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमें एक शार्पर इमेज मिलेगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक हो गया, अगला पार्ट आ गया। Okay, so the next part says that a student investigates the oscillation of masses attached to a meter rule. She attaches 200 grams masses to the end of the meter rule. The diameter and width of one of the masses are shown on figure 3.1. Measure the length of D and W। अच्छा, अब आपने किधर करना क्या है, आप अपना स्केल लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे एंड ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे।
जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, आप इंचेस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, जिसमें भी अपना ले रहे हैं, आपने यूनिट लिखना है, आपने इन दो को मार्क करना है, सिमिलरली इसको अपनी स्केल से रखना है, मार्क करना है, एंड क्या करना है, मार्क करके जो वैल्यू है आपने पुट कर देनी है। अब अगेन आप याद रखें, जब आप अपने पेपर्स को प्रिंट करेंगे और अपने प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या, हमारा प्रिंटर जो है वो क्या कर देता है, वो कर देता है फिट टू पेज। जब फिट टू पेज कर देता है तो आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो मार्किंग स्कीम के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही होती। मार्किंग स्कीम में दूसरा आंसर आ रहा है, आपके दूसरा आंसर आ रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये प्रिंटर का मसला होता है। दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, इफ यू डूइंग द कॉन्सेप्ट राइट, पेपर के अंदर आपके पास सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो ये आंसर कितना बनेगा, आपने इसको अपने स्केल रखा, सो दिस विल बिकम somewhere around 3.9 सेंटीमीटर एंड दिस विल बिकम 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। अगला पार्ट कहता है that the student sticks the pair of masses together and secures them to the end of the meter rule using adhesive putty. Adhesive putty क्या होता है, स्टिक करने के लिए हम यूज करते हैं। Part of the scale at the end of the rule is covered by the masses as shown in the figure 3.2. Determine a method to determine the position of the center of the masses on the meter rule. अच्छा जी, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, हेयर मी आउट, कि देखें ये क्या है, ये हमारे पास जो क्या कहते हैं, ये चीज जो हमारे पास, ये शेप जो पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट इज द सर्कल, राइट, इट इज अ सर्कल। तो सर्कल के अगर मैं सेंटर ऑफ मास किधर होता है, सेंटर में होता है ना, राइट। अगर मैं इसके यहाँ से अपने एज से मेजर करूँ डिस्टेंस, यहाँ से मैं अपना डिस्टेंस मेजर करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट इट इज अ रेडियस, राइट, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये है, राइट, हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, अ मेथड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगी कि ये, और ये है किस पे, अभी स्केल पे किस तरह है, जीरो पे है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जीरो प्लस रेडियस, या हम लोग कहेंगे जीरो प्लस हाफ द डायमीटर विल गिव अस द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगला आ गया, suggest why the student does not attach the message to the lower side of the meter rule. लोअर साइड पे हम लोग क्यों नहीं लगाते, देखें ये बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात, मैसेज जो है हमारे पास, दे आर मोर लाइकली टू डिटैच, अब ये क्यों, देखिए एडहेसिव पुट्टी जो है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ताकि वो सारे मैसेज को होल्ड कर सके। तो दे आर मोर लाइकली टू डिटैच बिकॉज मैसेज आर मोर लाइकली टू डिटैच बिकॉज putty, adhesive putty, not strong enough to hold them, ठीक है जी, enough to hold them, ये बात क्लियर होगी। अगला पार्ट कहता है the other end of the meter rule is attached to the bench as shown in figure 3.3. क्या किया है, बेंच है, स्मॉल पीस ऑफ वुड है, मीटर रूल है, मैसेज है, जी क्लैंप लगा दिए, ठीक है। एज ऑफ द बेंच इज एट द 10 सेंटीमीटर मार्क ऑन the meter rule. Determine the distance L along the rule from the edge of the bench to the point on the rule directly below the center of masses. Use your value of D from part A. अच्छा जी, अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन इट इज नॉट ट्रिकी एट ऑल। अब इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों के पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को मीटर रूल की डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मीटर रूल कितना, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। हमें पता है कि जो मीटर रूल है वो होता है 100 सेंटीमीटर्स का, वो कितने का होता है, सॉरी 100 मीटर्स का होता है, सॉरी 100 मीटर्स का होता है, नहीं 100 सेंटीमीटर्स का होता है, यस सॉरी माय बैड। सो मीटर रूल कितना का होता है, 100 का होता है, राइट, 100 सेंटीमीटर्स का। उसने कहा उसमें से आपने एज ऑफ द बेंच कितना है, -10, हमने एल ढूंढना है, एल क्या है, एल हमने ढूंढना है, राइट, फ्रॉम द एज ऑफ द बेंच द पॉइंट ऑफ द रूल डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ मैसेज, ठीक है। सो हम एल किससे ढूंढेंगे, हम मीटर रॉड में से उसका डिस्टेंस, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर मार्क एंड वील माइनस द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम पार्ट ए, फ्रॉम वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम पार्ट ए। अच्छा जी, अब ये कितना है, 3.9 है। अब मैंने क्या ढूंढना है, 0 प्लस हाफ द डायमीटर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा माइनस 3.9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने रेडियस चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 100 माइनस 10 माइनस 1.95, दिस विल बिकम 88 पॉइंट, सारा कुछ राउंड ऑफ कर लो, दिस विल बिकम 88.1। आई नो अभी कुछ समझ नहीं आई होगी, गिव मी अ मिनट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। हमने क्या किया, हमने मीटर रूल में से
10 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर रूल जो हमें दिया तो उसको माइनस किया, और उसको माइनस किससे किया कि जिधर सेंटर ऑफ द मास थी, सेंटर ऑफ द मास किधर थी, हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर थी, पूरे डायमीटर की लेंथ थी, हाफ द डायमीटर जो रेडियस है हमारे पास या 1/2 हाफ द डायमीटर उधर प्लेस है क्योंकि सेंटर ऑफ मास उधर है। तो हम लोग क्या करेंगे 3.9 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 1.95 आ गया। हम इन सबको माइनस किया तो L की वैल्यू आ जाएगी 88.1। अगला क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट लिफ्ट्स द फ्री एंड ऑफ द मीटर रूल अंटिल रूल इज अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल, then she releases the rule and observes the masses oscillating. She measures the time taken for 20 oscillation, repeats the procedure and records the time taken. Determine the time t for one oscillation. Show your working. अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लोग एवरेज लेंगे अपनी। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 10.56 प्लस 10.51 ओवर 2। हमने एवरेज अपना लिए, जब हमने इसको एवरेज लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 10.535, दिस विल बिकम 10.535। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे दैट t इज इक्वल्स टू एवरेज ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो एवरेज कितना आया हमारे पास 10.535, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है 20, ये कितना बन जाएगा 0. ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 0.5652675, राउंड ऑफ कर लेंगे, दिस विल बिकम 0.53। अब हमने क्या किया, उसने कहा द स्टूडेंट रिपीट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर 4 मोर वैल्यूज ऑफ L बाय मूविंग द masses along the top surface of the meter rule. In table 3 record your value L from B3 and your value of T from C1 and an appropriate unit to the heading of each column. तो हम क्या करेंगे, हम इधर लगा देंगे 88 पॉइंट, हमने क्या ढूंढा 88.1, एंड इधर एक मिनट मुझे रुके, दिस विल बिकम 88.1 एंड टाइम हम लोग ने कितना निकाला 0.53, तो ये 0.53 बन जाएगा, ठीक है, ये 88.1 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 0.53। टाइम हमारा सेकंड में ले लेते हैं, लेंथ हम लोग अपने सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। उसने कहा ऑन द ग्रिड प्लॉट अ ग्राफ ऑन t ऑन द y एक्सिस L ऑन द x एक्सिस, मतलब कि y एक्सिस पर t पुट करें, x एक्सिस पर L पुट करें। यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये मैंने इधर बनाई हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने देखिए आपके पास रेंज ऑफ वैल्यू कितनी है y एक्सिस पे। आपने देखा कि अगर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है 0.53, तो मैंने ऐसी रीडिंग लेनी है, ऐसे अपनी 1 सेंटीमीटर टू कितनी जो हमारे पास ग्राफ की स्केल होता है, हमने ऐसा स्केल लेना है तो जो हमारे पास अप्रोप्रिएटली पूरा ग्राफ पे आ जाए। एक काम हमने करना है, एंड फिर हमने x एक्सिस पे भी देखना है, उसका भी स्केल ले लेना है। तो इधर मैंने क्या किया है, आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो, मैंने जो मुझे अप्रोप्रिएट लगा मैंने क्या किया, मैंने कहा जो एक है ना ये 10 बॉक्सेस, दिस 10 बॉक्सेस आर इक्विवेलेंट टू 0.05, ठीक है। तो मैंने 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 so on and so forth until 0.6 मैंने किया। एंड इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने स्टार्ट 30 से किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने 30 से स्टार्ट कर ली, मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने 30 से स्टार्ट किया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क किया, और मैंने देखा कि भाई मुझे बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी बन रही है। देखिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि इक्वल बैलेंस हो, इधर एक है इस साइड पे, इधर एक है इस साइड पे, नियरली ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस है, अच्छी प्यारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है। अगला पार्ट कहते हैं यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ t व्हेन l इज इक्वल टू 60। हमने क्या किया, हम 60 पे जाएंगे, देखेंगे किधर है, इसको की वैल्यू पर चेक करेंगे, दिस विल बिकम 0.35। अगेन एग्जामिनर ने काफी रेंज दी हुई थी, हमने 0.35 पुट कर देना। मैं ग्राफ बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बंदे की अपना तरीका होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई एम जस्ट टेलिंग द स्टेप्स व्हिच आर नेसेसरी टू मेक अ गुड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। अगला आ गया एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ L टू लेस देन 40 सेंटीमीटर। अब होगा क्या, देखिए इसमें टाइम टेकन कितना लग रहा है, 0.22 सेकंड्स लग रहे हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि टू मेनी ऑसिलेशंस टू काउंट विद सर्टेनिटी। इसका रीजनिंग क्या है, दैट टू मेनी ऑसिलेशंस या टू फास्ट ऑसिलेशंस या टू फास्ट या टू मेनी ऑसिलेशंस टू काउंट विद सर्टेनिटी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम टेकन जो है फॉर ऑसिलेशन जो है, टाइम टेकन फॉर ऑसिलेशन बहुत कम हो रहा है,
जैसे हम लोग अपनी लेंथ को कम कर रहे हैं, टाइम टेकन भी कम हो रही है। तो हम 40 से बिलो इसलिए नहीं कर सकते कि देयर आर टू फास्ट, टू मेनी ऑसिलेशंस टू काउंट विद सर्टेनिटी, ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आए। इट इज टू फास्ट, टू मेनी ऑसिलेशंस। ठीक है, नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। अच्छा, वी हैव लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है that a student places a small metal container inside a large metal container as shown in figure 4.1. There is an air gap between the two containers. The student investigates the effect of the size of the air gap on the rate of cooling of hot water. ठीक है, plan an experiment to investigate the effect of the size of the air gap between the small metal container and a larger metal container on the rate of cooling of hot water. The following apparatus is available: a small metal container, a number of metal containers of different diameters, all larger than the small container, a thermometer, a stopwatch, a measuring cylinder, a supply of hot water. You can also use other apparatus and materials that are usually available in a school laboratory. You are not required to do this investigation. In your plan, you should explain briefly how to carry out the investigation, state the key variables to control, draw a table or tables with column headings to show how to display your readings. You are not required to enter any readings in the table. Explain how to use readings to reach a conclusion. A diagram is not required, but you may draw one if it helps your explanation. ये कहते हैं this is 6 marks. मैंने आप लोगों से क्या करना है, that what you have to do is you have to pause the video. You have to pause the video और एक दफ़ा क्वेश्चन को thoroughly go through करें. आई होप सब ने क्वेश्चन को एक दफ़ा thoroughly go through कर लिया होगा. अब क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, दैट हम लोग ने क्वेश्चन में बताना है कि अगर हम लोग मेटल कंटेनर का साइज चेंज करेंगे, मतलब कि हम लोग एयर गैप का साइज इंक्रीज करेंगे, तो हमारी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर पे क्या इफेक्ट आएगा. हमने अब इस अपैरेटस को समझाना है, हमने बताना है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह कैरी आउट होगी, हमने बताना है कौन सी वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल करना है, हमने टेबल बतानी है टू डिस्प्ले आर रीडिंग्स, हमने उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं डालनी, और हमने बताना है कि हम उस रीडिंग्स को आइडेंटिफाई करके, रीडिंग्स को देख के, रीडिंग्स को ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, किस तरह पहुंच सकते हैं, ये पूरी कहानी समझानी है. अब यू प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड. आखिरी क्वेश्चन रहेगा, मेरे साथ साथ रहेंगे. अब ये बहुत आसान है. अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट अ स्पेसिफिक, we'll put a specific volume of hot water, in a small container. ठीक हो गया. फिर we will place a thermometer एक मिनट, hot water in a small container and एक मिनट, सॉरी मेरा इधर एक पॉइंट मिसिंग हो गया. Put a specific volume of hot water in a small container and place smaller container in larger container, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर क्राइटेरिया यही है. ठीक है, and place smaller container in a large container. उसके बाद क्या करना है, place a thermometer और मुझे एक मिनट देंगे, मुझे कंटेनर ज़रा गंदा सा लग रहा है, ज़रा सही कर लो. ओके, place a thermometer in the smaller container अब इधर आप लोग मेरी बात सुनो, इधर हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने क्या किया, हम लोगों ने जी ये स्मॉल कंटेनर है, उसके अंदर इसके बाहर एक आउटर कंटेनर है, हमने स्मॉल कंटेनर के अंदर थर्मामीटर रखा, थर्मामीटर प्लेस किया. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक, अब इधर आपकी टोटली आपकी चॉइस है, या तो आप क्या करें, आप लोग सिंपली कह दो इनिशियल माइनस मतलब फाइनल एक टेम्परेचर लें, एक स्टार्टिंग टेम्परेचर लें, एक एंडिंग टेम्परेचर लें, आपकी मर्जी है. मैं वैल्यू दे देता हूँ ताकि आसान हो. मैं कहता हूँ 70 डिग्री पे आपने थर्मोमीटर को स्टार्ट करना है एंड तब तक करना है जब तक टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री तक ना जाए. और हम लोग इसको हेल्प किस तरह करेंगे, हम साथ स्टॉप वॉच यूज कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि देखिए इधर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सो वी आर अलाउड टू डू सो. तो हमने क्या किया, हमने कहा प्लेस अ थर्मोमीटर इन द स्मॉलर कंटेनर,
नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, मैंने अपना मर्जी से दे दिया, आप लोग कुछ भी दे दो या आप लोग कह दो स्टार्टिंग एंड एंडिंग। सो मैंने कहा व्हेन टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, start the stopwatch, and when temperature is 60 degrees Celsius, stop the stopwatch, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया, पहला काम हमने कर दिया। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहला समझा दिया, हमने कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन समझा दिया। हमने क्या किया, हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर लेंगे, उसको स्मॉल कंटेनर के अंदर प्लेस करेंगे और स्मॉल कंटेनर को हम एक लार्ज कंटेनर के अंदर प्लेस करेंगे। हमने थर्मोमीटर प्लेस किया स्मॉल कंटेनर के अंदर एंड हमने एक टेम्परेचर रख दिया जहाँ से स्टार्टिंग टेम्परेचर, और स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और एक हम लोग फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे जो आपकी मर्जी आपने सेट किया। मैंने 70 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस सेट किया एंड विल स्टॉप द स्टॉप वॉच व्हेन द टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। अब अगला काम क्या करेंगे हम लोग, वी विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट using same smaller container, repeat experiment using same smaller container but different, but at least 3 different, क्योंकि हमने एवरेज लेनी है तो हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो एटलीस्ट 3, but at least 3 different larger outer container, ठीक है। So repeat experiment using same smaller container but at least 3 different larger outer container then the previous experiment, जो मतलब हमने initially use किया, ये जो larger है ना, let's suppose ये है 1, ये हमारे पास है 1, तब हम लोग क्या करेंगे, इससे बड़ा लेंगे, इससे 3 different larger outer containers लेंगे, इसको नहीं लेंगे बट इसके अलावा और लेंगे ताकि हम लोग अपनी एवरेज ले सकें। रिपीट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम स्मॉलर कंटेनर बट एटलीस्ट 3 different larger outer container then the previous experiment, इसके बाद क्या करेंगे, we will do the same observations, वही हम लोग देखेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑफ करेंगे, do the same observations। अब इधर हम लोग ने वेरिएबल्स को डिस्कस करना है, सो मेक श्योर, क्या मेक श्योर हम लोग ने करना है। अच्छा, पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम लोग ने कौन सी वेरिएबल्स को कंट्रोल रखना है। सबसे पहली बात हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसकी, वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हर दफ़ा सेम टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब कि अगर मैंने रखा है तो हर दफ़ा मैंने 70 डिग्री पे स्टॉप वॉच को ऑन करना है और 60 डिग्री पे स्टॉप वॉच को ऑफ करना है, मतलब कि फाइनल भी स्टार्टिंग टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगला काम क्या हो सकता है कि हम लोगों ने आरटीपी जो रूम टेम्परेचर प्रेशर है वो सेम रखना है, सो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखना है। और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं 2-3 क्योंकि देखिए 6 मार्क्स के अंदर हम लोग की मार्क की ग्रेडिंग किस तरह है, इन्वेस्टिगेशन पे मार्क्स हैं, वेरिएबल्स टू कंट्रोल पे मार्क्स हैं, टेबल पे मार्क्स हैं एंड कंक्लूजन पे मार्क्स हैं। इसकी क्या वेटेज है, आई विल टेल यू वंस वी हैव रिटन आवर आंसर, मैं आपको मार्किंग सीधे चेक करके बताता हूँ। सो अभी हमने क्या किया, रिपीट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम स्मॉलर कंटेनर बट एटलीस्ट 3 डिफरेंट लार्जर आउटर कंटेनर देन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, डू द सेम ऑब्जर्वेशन, मेक श्योर volume of hot water used remains same, is same each time, note down time taken, each time note down time required to drop temperature from 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। मैं इसका मतलब क्या है, इस सारे पॉइंट का मतलब क्या है कि सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर हो, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम स्टार्ट एंड एंड टेम्परेचर हो। आप सिर्फ स्टार्ट एंड एंड भी लिखो तो मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने एक दिया है कि ताकि आसानी हो जाए। टू ड्रॉप फ्रॉम 70 टू 60 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, ईच टाइम आरटीपी remains same, each time room temperature and pressure should remain same, each time RTP remains same। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गए हमारे वेरिएबल्स। नाउ हम लोग ने क्या करना है, अब हम कहेंगे टेबल बनाएंगे। अब हम कहेंगे टेबल जिसके थ्रू हम लोग
टेबल जिसके थ्रू हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस या अपनी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब ये टेबल्स किस तरह बनेंगे, लेट्स मेक आवरसेल्फ टेबल्स। अच्छा जी, ओके। अब ये टेबल्स किस चीज़ के बनेंगे, क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके यार ये क्या हो रहा है, अच्छा मुझे ज़रा दो 1 मिनट। ओके एंड ओके एंड ओके, हमने टेबल बनाया। इस टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़ आएगी एयर गैप इन सेंटीमीटर्स कर लें जैसा आपका दिल चाहे, टेम्परेचर ड्रॉप इन डिग्री सेल्सियस मैंने कि आप लोग केल्विन कर लें जो दिल चाहे, लेकिन यही टेबल बना लें, एंड टाइम टेकन इन सेकेंड्स। अब आप लोगों ने क्या आप लोगों ने अपने क्लियरली क्या बताना है कि क्या चीज़ टेबल के अंदर है, उसकी क्या यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर अब आप लोगों ने इसके अंदर कोई वैल्यूज फिल नहीं करनी, नो वैल्यूज फिल, ये एग्जामिनर ने हमें कंडीशन दी हुई। अब इस टेबल से हम लोगों को कंक्लूजन कैसे हम लोग देंगे, अब ये कंक्लूजन इधर आ जाए। कंक्लूजन क्या होगी, दैट एयर गैप, अब ये दो चीजें, एक लॉजिक सेंस पे है और एक प्रैक्टिकली है। जो लॉजिक पे बात है वो ये है दैट एयर गैप दैट टेक्स लेस टाइम फॉर सेम temperature change, for same change in temperature, for same temperature change has the greatest cooling rate। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने यही पूछना था, हमने कहा एयर गैप दैट टेक्स लेस टाइम फॉर सेम टेम्परेचर चेंज हैज द ग्रेटेस्ट कूलिंग रेट। ये तो हमारे पास अकल बताती है ना, ये हम लोगों को कॉमन सेंस बताती है कि इसी तरह ही होगा, क्योंकि देखिए ऊपर हम लोगों को क्या क्वेश्चन ने कहा है दैट द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द एयर गैप ऑन द रेट ऑफ कूलिंग हॉट वाटर। तो हम लोगों ने क्या कहा कि एयर गैप जो सबसे कम टाइम लेगा फॉर सेम टेम्परेचर चेंज उसकी ग्रेटेस्ट कूलिंग रेट होगी। अब सेम टेम्परेचर चेंज होगा तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और काम भी क्या कर सकते हैं, देखो ये आप लोगों को नहीं करना, आप कहते हैं मैं अकल नहीं लगाता, मैं प्रैक्टिकली देखूंगा, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बंदे हैं, आप क्या करेंगे, और what you can do is you will plot a graph of temperature against time, अब करेंगे क्या, टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम, जिस ग्राफ का स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होगा या जिस लाइन का, जिस कर्व का, द कर्व या लाइन, द लाइन विद द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट is equals to greatest rate of cooling। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने इधर मैंने एक टेबल बनाया, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर मेरा टेम्परेचर है, इधर मेरा टाइम है सेकंड्स के अंदर, टेम्परेचर है मेरे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब मैंने कहा, अब इसके अंदर ये समझाने की बात क्या कि मैं कहता हूँ कि जी एक मेरा पॉइंट बना इधर, ठीक है, एक मेरा पॉइंट बना है इधर, एक मेरी ग्राफ बनी है जी इधर से स्टीप, एक मेरा ग्राफ बना है जी इस तरह। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया जी 1, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये मेरे पास आ जाएगा 3। तो मैं क्या कहूँगा, 3 का स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है तो इसका फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा। सो हम लोगों ने क्या किया 6 मार्क के एक्सपेरिमेंट में, एक दफ़ा क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ना है, आप पीछे जाएं, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर वापस आएं और ये देखें। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पता क्या करना था कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट करना है, एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द एयर गैप बिटवीन स्मॉल मेटल कंटेनर, लार्ज मेटल कंटेनर ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। तो हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर लिया, उसको स्मॉल कंटेनर के अंदर प्लेस किया, स्मॉल कंटेनर को एक लार्जर आउटर कंटेनर के अंदर प्लेस किया, स्मॉल कंटेनर के अंदर थर्मामीटर रखा और एक स्टार्टिंग टेम्परेचर और एक फाइनल टेम्परेचर को मेजर किया। मैंने कहा कि 70 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप वॉच को ऑन करें, 60 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप वॉच को ऑफ कर दें। उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे
स्मॉल कंटेनर का साइज सेम रहेगा, लेकिन जो बाहर लार्जर कंटेनर है उसमें हम लोग एटलीस्ट 3 डिफरेंट लेंगे ताकि हमारे पास एटलीस्ट टेबल के अंदर वैल्यूज आ जाएं, ताकि हम उसको आगे कंक्लूजन पे पहुंच सकें। हम लोगों ने ये किया। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स कौन से कंट्रोल किए। हम लोगों ने कहा वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर मस्ट बी सेम ईच टाइम, नोट डाउन द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप टेम्परेचर फ्रॉम 70 to 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि सेम चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट कर दिया कि जी रूम टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। फिर हमने टेबल किस तरह बनाया कि एक टेबल के अंदर एयर गैप आएगा सेंटीमीटर्स में, टेम्परेचर ड्रॉप आएगा डिग्री सेल्सियस में, एंड टाइम टेकन आएगा इन सेकंड्स। उसके बाद मैं कहूँगा दो तरीके हैं कंक्लूजन पे। एक जो अकल बताती है दैट एयर गैप दैट टेक्स लेस टाइम फॉर सेम टेम्परेचर चेंज हैज द ग्रेटेस्ट कूलिंग रेट। और अगर प्रैक्टिकली मैंने देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊंगा, टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा और देखूंगा, सारी टेबल की वैल्यू को प्लॉट करूंगा और देखूंगा कि किस लाइन या किस कर्व पे सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है। तो जिसका स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होगा उसकी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ कूलिंग होगी। ये पूरी कहानी है। आई होप इट इज क्लियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एटीपी एग्जामिनेशन and I am always available in the comment section, as well as अगर आप Google Drive में देख रहे हैं, so you can revert back to your Instagram, मुझे DM करें, and I'm very active nowadays on my Instagram page, always here to help you guys. Allah Hafiz, stay blessed.